Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 2 सूरत अल बकरा आयत नंबर 202 से 202। आप सब कुरान खोल लीजिए, तिलावत होगी। आवाज आ रही है? أولئك لهم نصيب جی باجی آ رہی مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق अल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 202 से हम पढ़ेंगे। काइंडली शेयर द स्क्रीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइक, यही वो लोग हैं, लहुम, लिए उनके, नसीबुम, एक हिस्सा है, फिक्स्ड शेयर है, मिम्मा कसबू, उससे जो उन्होंने कमाया, उससे जो उन्होंने अमल किए, वल्लाहु, और अल्लाह, सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द तेजी से हिसाब लेने वाला है। अल्लाह बहुत जल्द तेजी से हिसाब लेने वाला है। कल की क्लास में हमने दुआ पढ़े थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुआ सिखाई कि हज के दौरान, मिना में, अरफात में, तवाफ के दौरान, आम दिनों में, हर रोज एक मोमिन अपने रब से क्या मांगे। रब्बना, कितनी अच्छे से ये जो दुआएं हैं कुरानिक, वो रब्बना से शुरू होती है। रब्बना का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? रब्बना का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रब्बना? اے رب ہمارے ए रब हमारे। तो हाउ स्वीटली अपने रब को पुकार रहे हैं, और दुआ जो है ना, हम हमारे रब से मांग रहे हैं। तो मैं नहीं मांग रही हूँ, यानी इट्स नॉट पर्सनल।
ہم سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، آتینا صرف مجھے نہیں ہم سب کو عطا کر، دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی، اور جہنم کی آگ سے بھی ہم سب کو بچا لے. تو یہ جو ہے اجتماعی دعا ہے، وہ پلورل فارم میں سب کے لیے مانگی جاتی ہے. اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اس کے ڈیٹیلز ہم نے کل پڑھے تھے. اب 201 میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. 202 میں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. یہ کون سے لوگ؟ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس ایک فکسڈ شیئر ہے، حصہ ہے. اللہ کے پاس حصہ ہے ان کا. کس میں؟ اس میں سے جو انہوں نے کسبو بہت محنت سے کام کیا. اپنی زندگی بھر انہوں نے جو نیک اعمال کیے، عبادتیں کی، اللہ سے دعائیں کی، توبہ کی، استغفار کیے، ان سب کے ان اعمال کا اللہ کے پاس کیا ہے؟ ذخیرہ ہے. اللہ ہیز سیوڈ اٹ سیف وتھ اللہ. ہاؤ سویٹ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کچھ تم اچھے عمل کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، عبادت کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا تمہارا حصہ اللہ کے پاس سیف رکھا ہے. اور یہ مت بھولو کہ اللہ جو ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی وہ دن دور نہیں ہے جب حساب کتاب ہوگا. اللہ اکبر. اور ہم تو کیا سوچتے ہیں، جب ہوگا تب کی دیکھی جائے گی، ابھی کیا فکر ہے، ابھی کیا ٹینشن. ایسا نہیں ہے. اوکے. تو جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو بھی ہم ایک نیک کام کرتے ہیں، اس کا نیکی کا، ہر ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا اجر لکھے ہیں. ایک نیکی کا اجر منیمم 10 نیکی اللہ کے پاس ملٹیپلائڈ بائی 10. اور اگر ایک گناہ کیا تو اس کو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اور وہ بھی فرشتے سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی اگر اس نے گناہ کر کے اس کو گلٹی فیل ہو رہا ہے اور وہ ابھی کے ابھی توبہ کر لے، تو پھر اس کے اس گناہ کو لکھو بھی مت. الحمدللہ. یہ ہے اللہ کی شان. اللہ ہم سب کو اللہ کی ربانیت اور اس کی رحمت کو سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ. پچھلی آیت پر پہلے ایک بار جاؤں گی، then we will move ahead. بہت ہی ایک خاص چیز ہم نے جو پڑھی تھی آیت نمبر 199 میں. ذرا آیت 199 پر چلیے پلیز. سورہ ہم نے کیا پڑھے 199 میں؟ ذرا آپ پڑھیے ترجمہ. ون 99 پڑھو. پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ، اور بخشش مانگو اور اللہ سے، بے شک اللہ بہت خوب بخشنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یس الحمدللہ. تو میں اس آیت پر اس لیے واپس آئی کہ ہم نے اس پارٹ کو تھوڑا سا مس کیا تھا، اسے زیادہ اس پر فوکس نہیں کیا تھا. بٹ یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے حج کے ارکان میں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج نہیں، ہر روز کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، میں آپ کو حدیث پڑھ کر سناتی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 times استغفار کیا کرتے تھے. How many times? 3 times. 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. یعنی نماز ہو گئی، سلام پھیر دیا، پھر ایک بار تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اگر ہم نہیں کرتے تو انشاءاللہ آج سے کریں گے. کیا کرنا ہے سوریا؟ سلام پھیرنے کے بعد، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر پڑھنا ہے. اللہ کی تکبیر بیان کرنے کے بعد میں 3 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے ہر یس، نماز کے. ہر فرض نماز کے بعد. ویری گڈ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران خوب استغفار کیا کرتے تھے. انہوں نے خوب استغفار کیا اور ہمیں ایک خاص استغفار کی ترغیب بھی دلائی. ایک اور حدیث پہلے پڑھتی ہوں، آپ لوگ لکھ لیجئے، ویری امپورٹنٹ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنی امت کے لیے استغفار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے استغفار کیا. تو ہمارے لیے آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر چکے ہیں. ابھی جب ہم حج کے لیے جائے تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر خود اپنے لیے اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بھی استغفار کریں انشاءاللہ. پھر استغفار کے کچھ اور فائدے بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں انشاءاللہ. پھر ہم آگے کی آیتوں پر چلیں گے بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. استغفار کیسے پڑھتے ہیں؟ استغفار کی دعا آتی ہے. جی بھائی. دیکھیے اسکرین پر ہے، ذرا پڑھ لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کا میننگ؟ یا اللہ مغفرت چاہتی ہوں ہر قسم کے گناہ سے اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. یس، تو یہ خاص استغفار ہے کہ اس میں استغفار بھی ہو گیا اور توبہ بھی ہو گئی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر گناہ کا استغفار، وتوب الیہ، تیری بارگاہ میں توبہ کے ساتھ. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ڈفرنس بٹوین استغفار اینڈ توبہ. استغفار ہوتا ہے ہمارے پریویس پاسٹ کے گناہوں کے لیے، جو ماضی میں ہم کر چکے ان گناہوں کی استغفار آج کرتے ہیں. اور توبہ ہوتی ہے کہ آئندہ، آج کے بعد، ان فیوچر میں ان گناہوں کو نہیں دہراؤں گی، میں توبہ کر لیتی ہوں آج کے بعد ان گناہوں سے. I will never repeat these sins again. یہ فرق ہے استغفار اور توبہ کے بیچ. اسے ریپیٹ کر دو جلدی سوریا، ڈفرنس بٹوین استغفار اینڈ توبہ. استغفار ہمارے پریویس جو ہم نے پاسٹ میں جو گناہ کیے ہیں اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں، اور توبہ ہم ابھی آئندہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے گناہ انشاءاللہ. ویری گڈ. ابھی یہ والی حدیث ہے، دیکھیے اسکرین پر، سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، کمپلسری استغفار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہر تنگی سے، ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم کنٹینیوس، کمپلسرلی، ریگولرلی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
ہر تنگی، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نکلنے کا ایک راستہ عطا فرمائے گا. الحمدللہ. دیٹ مینس ہر مشکل کی آسانی کا علاج کیا ہے؟ استغفار. اب یہاں پر استغفار کے بہت سارے فائدے ہمیں نظر آئیں گے. یہ ہے اس کا ریفرنس سورہ نوح کی آیت 70 سورہ نوح کی آیتیں 10, 11 and 12. اس کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ جو کوئی اپنے رب سے استغفار کرے تو وہ رب بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ استغفار کی وجہ سے آسمان سے تم پر رحمت کی بارش برسائے گا. دیکھیں نمبر 1 فائدہ کیا ہے؟ تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا. نمبر 2 وہ آسمان سے تمہارے لیے رحمت کی بارش برسائے گا. یعنی اگر کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے تو استغفار کرنے سے اللہ بارش برساتا ہے. نمبر 3 مال سے تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی تمہارے مال میں بھی کیا ہوگا؟ بڑھت ہوگی، اضافہ ہوگا. نیکسٹ اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا. اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو استغفار کرنے سے اولاد بھی ہوگی. اور اگر تمہاری اولاد صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، بھٹک رہی ہے تو تمہارے استغفار کرنے سے اللہ تمہاری اولاد کو بھی صحیح کر دے گا انشاءاللہ. اور اللہ تمہیں باغات، گارڈنز عطا کرے گا. سبحان اللہ. گارڈنز کا مطلب ضروری نہیں ریئل گارڈنز ہی ہو. گارڈن سے کیا ہوتا ہے؟ پروڈیوس، فروٹس. یعنی تمہارے فائدے کے کام اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر دے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. نہریں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریورز، اسپرنگز. الحمدللہ. تو دیٹ مینس برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالی. اور ان سب کا کیا ہے؟ ایک ہی کرنے کا کام ہے اور وہ ہے استغفار. اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا انشاءاللہ. اتنے سارے فائدے ہیں تو کیا ہم کریں گے استغفار یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے. انشاءاللہ. اب یہ دیکھیے یہ کتنی اچھی دعا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیک کام کرتے ہیں تو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور برا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں گی کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو نیک کام کرتے ہیں تو تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور برا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. آمین. اوکے. یہ ہم نے جب کھانے کی آیتیں آئی تھی نا، حلال اور حرام کی آیتیں، تب ہم نے یہ والی دعا پڑھے تھے، کھانے کے بعد کی دعا. جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کیا ہم نے اس دعا کو اپنے ایوری ڈے لائف میں انکلوڈ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت. یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری قدرت اور طاقت نہ ہونے کے باوجود مجھے یہ عطا فرمایا. یعنی میری کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ تو نے مجھے عطا کیا. جب ہم سارا کریڈٹ رب ہونے کا، کھانا کھلانے کا اللہ کو دے دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے راضی ہو کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہاؤ لولی از دیٹ، ہے نا؟ کہ کھانا بھی ہم نے کھایا اور ایک دعا پڑھ لی تو اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ اس نے ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے.
isn't it, Shamim? Alhamdulillah. Yes. अभी ये वाली दुआ देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी अच्छी अच्छी दुआएं सिखाई। जामिया तिर्मिदी की रिवायत है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे अच्छे अच्छे कामों के करने और बुरे कामों से बचने और मिस्कीन से मोहब्बत करने की तौफीक मांगता हूँ। क्या चाहिए मुझे? कि मैं अच्छे अच्छे काम करूं और बुरे कामों से बचूं और मिस्कीन से मोहब्बत करूं। ये तौफीक तू मुझे अता कर दे। जब तू किसी कौम को फितने में डालना चाहे, नहीं बीच में रह गया, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे जब तू किसी कौम को फितने में डालना चाहे तो मुझे तू उस फितने में डालने से पहले मौत दे दे। अल्लाहू अकबर। तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें मांग ली इसके अंदर, बताओ। नंबर 1 अच्छे काम करने की तौफीक, नंबर 2 बुरे कामों से बचने की, नंबर 3 मिस्कीन से मोहब्बत करने की, नंबर 4 माफी की, नंबर 5 रहमत की, और नंबर 6 फितने से बचने की। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। ओके, अभी ये वाली दुआ जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा अलैहिस्सलाम को सिखाई थी, ये कुरान पाक में हम पढ़ चुके हैं, सूरत अल आराफ आयत 23 में। इसे पढ़ेंगे आप शमीम? The meaning बाजी और the dua? यस, दुआ में पढ़ लेती हूँ, आप मीनिंग पढ़ लो। जी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, और अगर तू हमको नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम जरूर तबाह हो जाएंगे। यस, और ये कितनी खास दुआ है कि अल्लाह ताला ने डायरेक्टली आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई थी। तो इस दुआ को हमें अपने मामूल में, एवरीडे रूटीन में शामिल करना है इंशाल्लाह। अल्लाह जरूर हमारी गुनाहों को भी माफ कर देगा। अल्लाह से अच्छी अच्छी उम्मीद रखे और अच्छी अच्छी दुआएं करे इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों को सैयदुल इस्तगफार के बारे में भी इंशाल्लाह इसके मीनिंग के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। प्लीज रिमाइंड मी, बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ टाइम टू डू सैयदुल इस्तगफार, जो कि ये है, स्क्रीन पर शेयर किया है मैंने, बट ये थोड़ा बड़ी दुआ है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी आयतों पर आते हैं वापस। काइंडली शेयर द स्क्रीन। अब हम बढ़ते हैं आयत नंबर 203 पर। आयत 203, वस्कुरुल्लाह, और तुम जिक्र करो अल्लाह का। वस्कुरुल्लाह, और तुम सब जिक्र करो अल्लाह का। कब करो जिक्र? फी अय्यामिम मादुदात, चंद गिनती के दिनों में तुम अल्लाह का जिक्र करो, चंद गिनती के दिनों में। इन फ्यू फिक्स्ड डेज, ये कौन से दिनों की तरफ इशारा है? अय्यामे तशरीक के मीना में 11 जिलहज, 12 जिलहज और 13 जिलहज, इनको क्या कहा गया है? अय्यामे तशरीक। इन दिनों में अल्लाह का खूब जिक्र करो। फमन तअज्जल, फिर जो कोई जल्दी करे, फी यौमैनी, 2 दिनों में, whoever has to hurry within 2 days। 2 दिन कहाँ मिले हमको? यौमैनी,
नून के नीचे जेर, 2 दिन। फला इस्म अलैहि, तो 2 दिनों में लौट गए तो भी कोई, फिर नहीं कोई गुनाह उस पर। जो कोई 2 दिनों में लौट जाए, 3 दिन न रुक सके, उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खर, और जो ताखीर करे यानी लेट तक रुके, 3 दिन रुके, 11, 12, 13 तीनों दिन रुके, फला इस्म अलैहि, फिर नहीं कोई गुनाह उस पर। तो 3 दिन रुको या 2 दिन रुको, कोई गुनाह नहीं। लिमनित्तका, लिए उसके जो वो तकवा करे, यानी अल्लाह के पास सबसे इंपॉर्टेंट बात, कदर किस चीज की है? तुम्हारे तकवा की। ओके, अल्लाह ताला क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी इबादत देखते। 3 डेज हो या 2 डेज, क्वांटिटी की फिक्र नहीं, लेकिन क्वालिटी की फिक्र होनी चाहिए। तकवा इम्पोर्टेंट है। तो क्या करो? वत्तकुल्लाह, और तुम सब तकवा करो अल्लाह से, अल्लाह की नाराजगी से बचो। वअलमू, और तुम जान लो, क्या जान लो? अन्नकुम, कि बेशक तुम, इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। हशर का मतलब क्या होता है? हशर का मैदान सुने हो? सुने हो हशर का मैदान? तो हशर का मतलब क्या हुआ? जमा करना भाई। जमा करना, वेरी गुड। तो कयामत के दिन जहां पर अल्लाह ताला हम सबको जमा करेंगे, वो होगा हशर का मैदान, द डे ऑफ रिजल्ट। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तकवा लेकर आएगा, जो तकवा लेकर आएगा, फायदा उसी का होगा। तो तुम जान लो, समझ जाओ कि आना तो अल्लाह ही के पास है। तो क्या लेकर जाना है अल्लाह के पास? हमारा तकवा। इससे हमें क्या याद दिलाई गई? कि हज के दौरान हर वक्त हमें अपनी मौत को भी याद करना है और आखिरत के घर को याद करना है। अगर हज के दौरान हम जाकर अभी भी सिर्फ दुनिया 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 ही हमारे दिल में बसी है, जैसे कल की आयतों में हमने पढ़े कि कुछ लोग सिर्फ दुनिया मांगते हैं, दे आर फोकस्ड ओनली अपॉन दुनिया, और आखिरत को बिल्कुल भूल गए हैं। तो ये हज और उम्रा एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है कि घर में तुम भले बादशाह हो या मिनिस्टर हो या मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर, बिलियनियर हो, लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे हज के मैदान, हज के लिए या उम्रा के लिए, तो सिर्फ 2 सफेद चादर, सिर्फ 2 सफेद चादर में लिपट कर आना है। तुम्हारे सारी वेल्थ, पावर तुम्हें पीछे छोड़कर आना है। तो ये प्रैक्टिस है आखिरत के दिन की, कि जब एक इंसान की मौत हो जाती है तो इन्हीं 2 सफेद कपड़ों में उसे लपेट कर, कफना कर, मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है। तुम्हारे बड़े बड़े घर और महल सारे धरे के धरे रह जाते हैं। अगर ये सबक हमें हज और उम्रा करके भी नहीं मिलता है और तकवा डेवलप नहीं होता है, तो फिर इट इज ऑफ नो यूज। अल्लाह अकबर। तकवा के बारे में हम बार बार पढ़ते आए हैं। सूरे बकरा की शुरुआत से ही हम तकवा के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर अभी हमने देखे कि रोजा रखने के लिए भी, रोजे में भी तकवा डेवलप होता है। फिर अभी हज में जिक्र आया, उसमें भी तकवा डेवलप होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है ये तकवा? फिर से एक बार इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है या नहीं? जब अल्लाह ताला ने हमें फिर से याद दिलाया है व्हाट इज तकवा, कौन बोलेगा व्हाट इज तकवा?
बाजी अल्लाह की नाराजगी से डरने को तकवा कहते हैं। अल्लाह ताला दिखते हैं कि हमको कि अल्लाह नाराज हो गए हैं बाबा। आप रोड पे जा रहे हो और अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो आपको आरटीओ पकड़ता है, तो आरटीओ नजर आ रहा है ना, पुलिसमैन नजर आता है, तो फिर हम डर जाते। अल्लाह ताला नजर आते हैं क्या? तो नहीं। कहाँ कैसे डेवलप होता है फिर ये तकवा? कोई बताएगा मुझे? देखो 3-3 हाथ ऊपर है, जरा पूछो इन लोगों से। खदीजा आंटी आप बोलिए। कुरान पढ़ने से, समझकर, नेकी का काम करने से, सदका देने से और बुराई से बचने से। इससे तकवा आता है, बट हमें कैसे फील हो, हमें कैसे पता चले कि मेरे अंदर तकवा आया है या नहीं आया, कैसे पता चलता है? सलमा, यू टेल मी। हाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब हम कुछ गलत काम करें और हमें डर लगे कि हमें खुदा देख रहा है और हमने गलती की और हम उसके तौबा इस्तिगफार करें, तब हमें पता चलता है कि हमारे में तकवा डेवलप हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स अ राइट आंसर। और कब पता चलता है? अकीफा, वुड यू लाइक टू शेयर? अंजुम? Actually, Baji, I know the definition of taqwa. ओके, नाउ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस टुडे कि कैसे पता चले। हाँ अंजुम आप बोलिए। अमल से हमको पता चलता है कि हमें तकवा डेवलप हो रहा है कि नहीं। अल्लाह से किससे हम पता चलता है? अमल से। अमल से। अच्छा, ओके। ज़ैनब? बाजी, जब हम कुछ करते हैं गिल्टी कॉन्शियस फीलिंग। गिल्टी Conscious. कॉन्शियस। वेरी गुड, कॉन्शियस, वेरी गुड। ओके, तो अब देखिए कि जब हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो तकवा की आयतें कहाँ है? सारी तकवा की आयतें कुरान के अंदर है, बराबर। अब हम जैसे रोजे का एग्जाम्पल ले ले, ओके, तो रोजा तो साल में एक बार एक महीना आता है हमारा रमजान का, फिर भी रोजे का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम रोजा रखते हैं तो कोई हमारे पास हो या न हो, क्या हम मुंह में खाने का एक निवाला, एक दाना भी डालते हैं? पानी का एक घूंट पी लेते हैं? नहीं पीते। अल्लाह नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे अंदर ये जो कॉन्शियस है, ये हमारे अंदर अल्लाह का ऐसा वजूद जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह। भले अल्लाह सामने नजर नहीं आ रहा है, कि अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें नहीं खाना है तो मुझे नहीं खाना है, बस कोई देखे या ना देखे। तो मेरे अमल अब क्या हो गए? सुधर गए। अब मैं वो कोई काम नहीं करती या कोशिश करती हूँ कि जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो, और मैं वो नेकी का काम करने लगी हूँ जिससे मेरा अल्लाह राजी होता। तो ये रोजा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट चीज है, बेस्ट इबादत है, अमल है जिससे तकवा डेवलप होता है, और वो फिर पूरा साल रहता है। सिर्फ खाना पीना ही नहीं, अब हमने पढ़ लिया कि झगड़ा भी नहीं करना है, बुरी चीजें देखनी भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, बुरा सुनना भी नहीं है, मारपीट भी नहीं करनी है, गाली गलौच भी नहीं करनी है। तो सिर्फ रमजान के महीने में नहीं, फिर वो तकवा पूरा साल भर हमारे अंदर डेवलप होने लगता है कॉन्स्टेंटली। और ये है बहुत ही खुशखबरी हमारे लिए कि डेवलप होने लगा है। अभी रमजान तो साल में एक बार आता है। एवरीडे इबादत में आप देखिए नमाज पढ़ते हैं, तो जब नमाज का वक्त हो गया और अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आपके दिल में क्या होता है? जैसे किसी ने कहा गिल्टी फील होता है, आपको गिल्टी फील होता है ना, कि अरे मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, मेरी नमाज मिस हो रही है, देर हो रही है, मुझे नमाज पढ़नी है। तो ये क्या हो गई? ये फिक्र ही आपका तकवा है। नमाज के दौरान वजू पहले बनाते हैं कि मेरा कोई वजू का हिस्सा जो है बॉडी का वो सूखा ना रह जाए, बड़ी फिक्र से हम वजू बनाते हैं। फिर नमाज में खड़े होते हैं तो प्रॉपर मेरी नमाज हो खुशू और खुजू के साथ, और
सही तरीके से किबला रुख होकर। तो ये क्या है, अब मेरा तकवा डेवलप हो रहा है। उस वक्त मेरे अंदर कोई बुरे ख्याल ना आए और मैं गुनाहों से बच जाऊं और मेरी नमाज भी कबूल हो जाए, इस चीज की फिक्र है। तो अब क्या है, अल्लाह को राजी करने की फिक्र, ये तकवा डेवलप हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तकवा के बारे में यहाँ पर स्क्रीन पर भी है, और ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो बहुत ही पॉपुलर बात है कि उन्होंने कहा, हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा तकवा क्या है। उन्होंने कहा कि कभी कांटेदार रास्ते में चले हो, जैसे वहां कपड़ों को और जिस्म को बचाते हो, ऐसे ही गुनाहों से बाल बाल बचने का नाम तकवा है। तो गुनाहों से कब बचेंगे, जब अल्लाह का डर होगा इंशाल्लाह। अभी एक और हदीस है तकवा के बारे में। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी चीज लोगों को जन्नत में ले जाएगी, कौन सी चीज लोगों को जन्नत में ले जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजें फरमाई। नंबर 1, अल्लाह का तकवा, खौफे खुदा, अल्लाह का तकवा। और नंबर 2, हुस्ने अखलाक, ब्यूटीफुल कैरेक्टर। ये दोनों चीज जिसके अंदर हो वो ही जन्नत में जाएगा। अभी हमें चेक करना है हमारा तकवा भी और हमारा कैरेक्टर भी। फिर पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज लोगों को जहन्नम में ले जाएगी, कौन सी चीजें लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। तो आपने फरमाया दो चीजें, नंबर 1 जबान, नंबर 2 शर्मगाह। नंबर 1 जबान, योर टंग, नंबर 2 शर्मगाह, योर प्राइवेट पार्ट्स। ये जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत है। तो देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर ये तकवा डेवलप हो, और हर वक्त कोई काम करने से पहले, अभी तो हुआ किसी ने कहा कि काम करने के बाद अगर हमने गुनाह किया है तो जल्दी से तौबा करने का दिल करता है, ये तकवा की निशानी। वेरी गुड। अभी तकवा के क्या होता है, लेवल होता है, लेवल। तो अभी हम लोग अगर फर्स्ट लेवल पर पहुंचे हैं तो ये होता है कि गुनाह करने के बाद जल्दी से तौबा कर लेते। अभी थोड़ा ऊपर के लेवल पे पहुंचना है तो ये होगा कि कोई भी काम करने से पहले, उससे पहले ही सोचेंगे हम कि क्या ये अल्लाह को राजी करने वाला काम है या नाराज करने वाला। अगर राजी करने वाला काम है तो मैं इसे जल्दी से कर दूं क्वालिटी के साथ, और अगर गुनाह का काम है अल्लाह को नाराज करने वाला तो मैं क्या करूं, रुक जाओ, पीछे हट जाओ। आई हैव टू स्टॉप हियर, पॉज। फिर चाहे वो गीबत है, गाली गलौज है, झगड़ा है, या और कोई गुनाह का काम। अल्लाह अकबर। तो इंशाल्लाह अपने तकवा के लेवल को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और क्या शेयर करना था आपके साथ, सॉरी। हाँ, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग सैयदुल इस्तग़फ़ार कर लेंगे आज, तो फिर नेक्स्ट आयतों पे बाद में ही चलेंगे बिकॉज द टॉपिक इज डिफरेंट देयर। सैयदुल इस्तग़फ़ार पर जाने से पहले मैं आपसे अभी कुछ क्वेश्चंस करूंगी। आप सब सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ते हो माशाल्लाह, हर रोज पढ़ते हो। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, शमीम, व्हेन वी वर इन द स्कूल डेज में आपको याद होगा कि हर सुबह स्कूल शुरू होते वक्त असेंबली में हम लोग एक प्लेज कहते थे फॉर द कंट्री। डू यू रिमेम्बर व्हाट प्लेज इट वाज? किसी को याद है क्या प्लेज कहते थे हम स्कूल में? यस सलमा। India is my country. All Indians are my brothers and sisters. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है,
یہ سننا چاہتی تھی. تو یہ تھا کہ ہم اسکول میں ہیں اور اپنی کنٹری کے لیے ہم ایک پلیج کرتے ہیں, یعنی ہم قسم کھاتے ہیں. پلیج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانا کہ انڈیا از مائی کنٹری, آل انڈینس آر مائی بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ آئی شل اسٹرائیو فار اٹس ویریڈ ہیریٹیج. کہ ہندی میں کہتے ہیں کہ بھارت میرا دیش ہے اور ہم سب سارے بھارتیہ میرے بھائی بہن ہیں, اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس کی ایکتا اینڈ واٹ ایور کے لیے میں کوشش کرتے رہوں. تو یہ پلیج کیا ہو گئی؟ اپنے کنٹری کے لیے. اوکے, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک پلیج سکھائی, ایک قسم کھانا سکھایا ہے, اور وہ ہے یہ سید الاستغفار, یعنی یہ تمام استغفار کا سردار ہے. اور اس کی خوشخبری تو ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح میں اس دعا کو سچے دل سے پورے ایمان کے ساتھ پڑھے, اور اگر شام تک رات تک اس کی موت ہو جائے تو وہ جنتی ہے, اور اگر وہ اس دعا کو شام میں پڑھے اور صبح تک اس کی موت ہو جائے تو وہ جنتی ہے. تو ایسی کیا خاص بات ہے اس دعا میں کہ اسے پڑھنے سے جنت ہی ہو جائے گا وہ شخص؟ ہم سب پڑھتے ہیں, بٹ اس پلیج کو سمجھ کر پڑھے. یہ حدیث کے جو ورڈز ہیں نا, اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. If you want, I will repeat it. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے, اگر اسی رات مر جائے تو یقینی طور پر جنتی ہوگا, اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے اسی دن مر جائے تو وہ جنتی ہوگا. لیکن اسے کیسے پڑھنا ہے؟ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ. تو اب یہ پلیج کیا ہے اسے سمجھتے ہیں. اس کا فرسٹ پارٹ ہے اللہم انت ربی, اللہم اے اللہ, انت تو, ربی اے اللہ بے شک تو ہی میرا رب ہے. نمبر 1. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے اپنی کنٹری کے لیے کہتے ہیں انڈیا از مائی کنٹری, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ بے شک اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. یو آر مائی لارڈ, لا الہ الا انت, نہیں کوئی معبود, نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے تیرے, none worthy of worship besides you. اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں شرک کو کاٹ دیا ہم نے, توحید کی کیا کر دی؟ پرومس کر دی, پلیج کر دیا. سمجھ آئے؟ فرسٹ پوائنٹ. یہ کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے پڑھنا ہے, اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہے, توحید پر جم جانا ہے, شرک کو اپنی لائف سے نکال باہر کرنا ہے. پھر سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ خلقتنی, تو نے پیدا کیا مجھے, یو آر مائی کریٹر. خلقتنی, تو نے پیدا کیا مجھے, یو آر مائی کریٹر. اور میں کون ہوں؟ وَأَنَا عَبْدُكَ, اور میں تیرا بندہ ہوں, میں تیری بندی ہوں. I am your slave. تو نے مجھے پیدا کیا, تو میرا رب ہے, اور میں کون ہوں؟ میں تیری بندی ہوں, تیری سلیو ہوں, تیری غلام ہوں. اب آگے دیکھیے, وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ, اور میں اوپر تیرے وعدے کے, اور میں اوپر تیرے وعدے کے, وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ, اور پوری کوشش کے ساتھ میں تیرے وعدے پہ قائم رہوں گی, پوری طاقت کے ساتھ, جتنی مجھ میں کیپیبلٹی ہو, with my complete
capability, I will try to remain steadfast upon your commands. तेरे हर हुक्म पर मैं अपनी ताकत के मुताबिक जमी रहूंगी या अल्लाह. ये क्या है? ये प्लेज, ये अल्लाह से प्रॉमिस है. अल्लाह मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरे जितने ऑर्डर्स, जितने अहकाम है कुरान में, मैं उन सब पर अपनी ताकत के मुताबिक अमल करती रहूंगी. ये प्रॉमिस है. समझ में आ रही है प्लेज आपको शमीम? जी बच्ची. यस. अभी आगे देखिए. अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु. ए अल्लाह, मैं पनाह में आती हूँ, मैं पनाह में आती हूँ हर अपने गुनाह से, हर अपने शर और बदकारियों से. जो भी शर गुनाह मैंने किए हैं, या अल्लाह मैं उन सब से तेरी पनाह में आती हूँ कि तू क्या कर, मेरे उन कोताहियों को माफ करके मुझे अपनी पनाह में ले ले. के ये क्या हो गया? कन्फेशन. और कन्फेशन के साथ साथ अल्लाह की प्रोटेक्शन भी मांग ली. अऊज़ु बिका. अऊज़ु क्या कहते हैं? कि मैं पनाह में आती हूँ. आई सीक रेफ्यूज. कि अल्लाह तू मुझे तेरी पनाह में ले ले. इन स्पाइट ऑफ ऑल माई सिंस. मेरी हर बुराई के बावजूद तू मुझे अपनी पनाह में ले ले. और इसके बाद अबू उलक बिनिअमतिका अलैया. अबू उलक बिनिअमतिका अलैया. या अल्लाह, मैं इजहार करती हूँ, मैं इजहार करती हूँ तेरी तमाम नेमतों का जो तूने मुझ पर अता की. I acknowledge all your favors upon me. देखिए अल्लाह से कैसी बात हो रही है इसमें कि अल्लाह तेरी जितनी नेमतें, जितने फेवर्स तूने मुझ पर किए हैं, मैं उन सब का इजहार करती हूँ, मैं उन सब को मानती हूँ. तो इसमें क्या हो गया कि सिर्फ जानना ही नहीं, मानना ही नहीं, एक्नॉलेज करना और शुक्र अदा करना भी हो गया तमाम नेमतों का. गॉट इट? उसके बाद आता है व अबू बिज़म्बी, व अबू बिज़म्बी. और मैं कन्फेशन करती हूँ. आई कन्फेस ऑल माई सिंस. या अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों का एतराफ करती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं कबूल करती हूँ जितने गुनाह मैंने किए, उन सब गुनाहों की का मैं एतराफ करती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं कबूल करती हूँ कि मैंने इतने गुनाह किए हैं. तो अब क्या करिए अल्लाह? अभी तक क्या हो रहा है? प्लेज हो रही है, कन्फेशन हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट हो रहा है. अब क्या कर? फगफिर ली. अब आ रहा है कि अल्लाह फिर तू क्या कर, तू माफ कर दे मुझे. तू क्या कर दे? माफ कर दे मुझे. फ़इन्नहु, फिर बेशक, ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता. या अल्लाह मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, तो तू मुझे बख्श दे, तू मुझे बख्श दे, क्योंकि गुनाहों को तेरे सिवा और कोई नहीं बख्शेगा. क्योंकि गुनाहों को तेरे सिवा और कोई नहीं बख्शेगा. या अल्लाह pardon me because none can pardon me except you. Only you have the power to pardon me. तेरे सिवा और कोई गुनाहों को नहीं बख्शता. अल्हम्दुलिल्लाह. ये हो गई इतनी बड़ी प्लेज. तमाम अस्तगफार का सरदार. और सही बुखारी की ये रिवायत है कि जो कोई इसे सुबह में पढ़े, शाम तक
सच्चे दिल से पढ़े। लेकिन आज हमें इसको समझने का मौका मिला कि सच्चे दिल से क्या कहना है अल्लाह से। अब देखिए इसमें ये कन्वर्सेशन कितना जबरदस्त कन्वर्सेशन है। सबसे पहले क्या किया, नंबर 1 पॉइंट लिखा है आप लोगों ने कि नहीं? जी बाजी। या मैं रिपीट करती हूँ एक बार, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि ए अल्लाह तू ही मेरा रब है। ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है खलकतनी, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे पैदा किया, यू क्रिएटेड मी। थर्ड पॉइंट है व अना अब्दुका, और मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तेरी गुलाम हूँ, आई एम योर स्लेव। फोर्थ पॉइंट है व अना अला अहदिका व वादिका, या अल्लाह मैं कायम रहूंगी पूरी ताकत के साथ तेरे अहकाम पर, तेरे हुक्मों पर अमल करने के लिए मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ कोशिश करती रहूंगी। I hold to your covenant as far as I can with all my capabilities. Number 5, a'udhu bika min sharri ma sana'atu. नंबर 5 पॉइंट है कि अल्लाह मैं अपने गुनाहों की, अपने बुराइयों से तेरी पनाह में आती हूँ। मैं अपने गुनाहों और अपने बुराइयों से तेरी पनाह में आती हूँ। I seek refuge in you from the evil of what I have done, from all my sins and my shortcomings. Next point, अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया, या अल्लाह मैं शुक्र अदा करती हूँ उन तमाम नेमतों का जो तूने मुझ पर अता की। I acknowledge all the favors that you have bestowed upon me. इसके बाद अबूउ लका बिनिअमति नहीं, अबूउ बिज़म्बी, अबूउ बिज़म्बी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह मैं एतराफ करती हूँ मेरे तमाम गुनाहों का, मैं कबूल करती हूँ मेरे तमाम गुनाह। I confess all my sins. अब ये सब हो गया। अब इसके बाद फगफिर ली, फिर या अल्लाह तू माफ कर दे मुझे, तू बख्श दे मुझे। या अल्लाह प्लीज पार्डन मी, मुझे बख्श दे। क्यों? फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, कि फिर बेशक वही अल्लाह है कि नहीं कोई और गुनाहों को बख्शता सिवाय तेरे। या अल्लाह गुनाहों को तेरे सिवा और कोई नहीं बख्शता। ये हो गई कंप्लीट प्लेज, कंप्लीट दुआ। इसे ऐसे समझकर सच्चे दिल से पढ़ना है और अपने आप को ये समझकर पढ़ना है कि अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया है सुधरने का, संवरने का। अल्लाह मुझे माफ भी तब करेगा जब मैं अपने आप को करेक्ट करूंगी, व्हेन आई करेक्ट माय वेज, इंशाल्लाह। तो इस कन्फेशन के बाद हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें हमारे तमाम गुनाहों से पाक कर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, इंशाल्लाह।
सैयदुल इस्तगफार के बारे में अगर आप रिफ्लेक्शंस देना चाहो, anybody, what did you learn from this? Actually, I used to read it every day, morning and evening. लेकिन अभी से मैं इसे बहुत समझ के पढ़ूंगी कि I will know कि ये एक प्लेज है अल्लाह के पास मेरा. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. गुड. निशात? बाजी मैंने ये समझा कि ये इस्तगफारों का सरदार है, ये दुआ सैयदुल इस्तगफार, और जो कोई इसे सुबह में सच्चे दिल से पढ़ेगा और शाम से पहले फौत हो जाएगा तो अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है. और इट्स अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद, बहुत जबरदस्त कॉन्वर्सेशन है अल्लाह ताला के साथ, और इसमें बहुत हम्बल होकर के हमने अपने आप को अल्लाह को सबमिशन किया है और माफी मांगी है. यस. और कन्फेशन में अपने गुनाह जो है ना, बड़े बड़े गुनाह हमारी आंखों के सामने आ जाए कि अल्लाह मैंने ये भी की हूँ, ये भी की हूँ, इसको भी माफ कर दे, उसको भी माफ कर दे, तो वो होती है सच्ची माफी इंशाल्लाह. ओके, एनीबॉडी एल्स? चलिए, अय्याम तशरीक के बारे में भी हमने कुछ हदीसें पढ़नी है, छोटी छोटी, एक एक लाइन की आप लिख सकते हैं. पहले तो ये बताइए कि अय्याम तशरीक कौन से दिन होते हैं? 11, 12, 13 जिलहज. वेरी गुड. इन दिनों में ये जिक्र करना है जो स्क्रीन पर है. तकबीरात ऑफ तशरीक, तशरीक के दिनों में बहुत ज्यादा तकबीर पढ़नी. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. इसमें क्या है? सिर्फ अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट. ये तशरीक के दिनों में पढ़नी है. अभी मैं आप लोग को 2-3 हदीसें लिखा देती हूँ इसी के बारे में. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, एक सहाबी को भेजा कि वो मीना में घूमकर अनाउंसमेंट कर दे, मुनादी कर दे कि इन 3 दिनों में 11, 12 और 13 जिलहज को, इन 3 दिनों में कोई रोजा ना रखे, कोई रोजा ना रखे. ये दिन खाने पीने और जिक्रुल्लाह करने के दिन है. ये दिन खाने पीने और जिक्रुल्लाह करने के दिन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दिनों में कोई रोजा ना रखे. अभी देखिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खेमे में इन द कैंप मीना में तकबीर कहते, ये जो स्क्रीन पर है ये तकबीर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बुलंद आवाज से लाउडली कहते, और आपकी तकबीर पर बाजार वाले लोग यानी मार्केट में भी लोग तकबीर कहते, यहाँ तक कि पूरा मीना का मैदान तकबीर से गूंज उठता. पूरा मीना का मैदान तकबीर से गूंज उठता. तो ये है कि अल्लाह का जिक्र करना है इन दिनों में. और शैतानों को कंकरियां मारने के वक्त यानी रमी करते वक्त तकबीर और जिक्रुल्लाह किया जाए, दूसरी बातें न की जाए, सिर्फ जिक्रुल्लाह और तकबीर की जाए. जब हज का ये पूरे अरकान पूरे हो जाए और तुम अपने अपने शहरों को, अपने घरों को लौट जाओ, इसीलिए फरमाया कि अल्लाह से डरते रहो. यानी ये जो तकवा यहाँ पर डेवलप हुआ है, आखिरत की याद यहाँ पर आई है, और ये जो गुनाहों से तुमने माफी मांगी है, एंड यू हैव बिकम क्लीन जस्ट लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी. तो अभी ये यकीन रखो कि ऐसे ही दोबारा अल्लाह तुम सबको कयामत के दिन जमा करेगा, और जो कुछ तुमने
दुनिया में अमल किए हैं, अच्छे हो या बुरे, उन सब का हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए हर अमल हम कॉन्शियसली तकवा के साथ करेंगे। ये था हज के बारे में और इसके मॉरल्स और इसका सम अप। एक हदीस जो मैंने शुरू में आपसे शेयर की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाहु अकबर, कि जो लोग हज करने की ताकत रखते हुए अगर हज नहीं कर सकते, सॉरी, जो हज की ताकत रखते हुए भी हज नहीं करते, उनके बारे में देखिए, ये बहुत ही डरावनी हदीस है। जो शख्स हज फर्ज होने के बाद हज किए बगैर मर जाए, जो शख्स हज फर्ज होने के बाद हज किए बगैर मर जाए, तो वो चाहे तो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अल्लाहु अकबर। यानी उसकी मौत मुसलमान की मौत नहीं होगी, ईमान की मौत नहीं होगी, अगर वो फर्ज होने के बावजूद हज ना करे और इसी तरह उसे मौत आ जाए। और हमें क्या पता कब हमारी मौत लिखी है, इसीलिए हम पर हज फर्ज हो, यानी अगर हम इसकी कैपेसिटी रखते हैं तो बगैर ताखीर किए, विदाउट एनी डिले, हमें क्या करना है, हज कर लेना है इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला हम सबको हज और उम्रा करने की तौफीक अता करे और उसे कबूल फरमाए।